solution is to be kept between 68 Fahrenheit and 77 degree Fahrenheit. Fahrenheit unit of measurement of temperature is given. What is the range of temperature in degree Celsius? What is the range of temperature in degree Celsius if the Celsius Fahrenheit conversion formula is given by Fahrenheit Celsius conversion formula is given. So that formula is F equal to 9 by 5 degree Celsius plus 32. This is the Fahrenheit Celsius degree measure conversion formula. You can convert Fahrenheit into Celsius and Celsius into Fahrenheit. Done. So you have to find the range of solution in terms of Celsius. The range of temperature of solution in terms of Fahrenheit is given. A solution is to be kept between 68 degree Fahrenheit and 77 degree Fahrenheit. That is the range of temperature in terms of F. Done. So Fahrenheit. So here we are given range of Fahrenheit measurement between 68 degree to 77 degree. So Fahrenheit temperature is greater than 68 degree and it is less than 77 degree. Is that clear? There is a formation of inequality from the given equation. Fahrenheit temperature lies between 68 degree and 77 degree. Now we have to convert this range, which is in terms of Fahrenheit, into Celsius, and the conversion formula to convert this Fahrenheit into Celsius is given. We can replace this Fahrenheit F with this formula. So now this one is 68 degree less than, or F is now converted into Celsius by 9 by 5C plus 32 less than 77 degree. Clear? So now we have to find the range of this Celsius temperature, degree Celsius. That means you have to find the range of this C. So first we have to eliminate this 32, then 5 and this 9. Total 3 steps are there. So to eliminate this 32, we will subtract 32 in this inequality. So 68 minus 32, 68 minus 32, कितना होगा? 66, 36, 36 less than 9 by 5 into C less than 45. Done. Now we will multiply on both sides by 5. So we will eliminate this 5. So 36 into 5, 180 degree less than 9 into C less than 225. Multiplying the inequality with 5, तो 5 भी cancel हो गया. Now 9 को remove करना है. We have to divide this inequality with 9. So 180 by 9, 20 degree less than C. और ये 9 2 जा 18, 4, 9 5 जा 45, 25. So the range of this Celsius measurement, range of this degree Celsius, we can say the range of this temperature in degree Celsius will be between 20 and 25. Degree Celsius maybe must be greater than 20 degrees Celsius and less than 25 degrees Celsius. Then this is the range of temperature of solution which is kept between 68 degree Fahrenheit and 77 degree Fahrenheit. तो सेल्सियस का जो रेंज होगी, द रेंज ऑफ सेल्सियस विल बी 20 to 25. Simple. Now next question. Question number 12. Read the question. Here, a solution of 8% boric acid is to be diluted by adding a 2% boric acid solution to it. है ना, डाइल्यूट करना है. जैसे अभी हम सैनिटाइज लेके आते हैं और जो सोप वाले सैनिटाइज उसको डाइल्यूट कर देते हैं ना, उसके अंदर क्या मिक्स करते हैं? वाटर मिक्स करते हैं.
है ना, तो 70% अल्कोहलिक होता है वो 50% अल्कोहलिक हो जाता है, तो दैट इज डाइल्यूटेड, पानी मिक्स करते हैं. So here, a solution of 8% boric acid is to be diluted by adding 2% boric acid solution to it. So you have to mix two solution. One is 8% boric acid and another one is 2% boric acid. So the resulting mixture is to be more than 4%. So what is the range of percentage of the mixture? That is, the resulting mixture is to be more than 4% but less than 6% boric acid. Done. The original solution is with 8% boric acid. What is the meaning of 8% boric acid? Suppose if we are having 100, we can say 100 liter of boric acid, then we have to add 8 liter, है ना, 8 liter boric acid होगा और बाकी का सब पानी होगा. That is 8% boric acid. जितना भी पार्ट है, that means टोटल 100% है, तो उसमें से 8% बोरिक एसिड होगा, बाकी सब पानी होगा. So that is 8% boric acid is to be diluted by adding 2% boric acid solution and the resulting mixture is to be more than 4%. तो अभी जो resulting mixture बनेगा वो कितना परसेंटेज होना चाहिए? It should be more than 4%, 4% से ज़्यादा, and less than 6% of boric acid. Done. अभी हमने कितना कंटेंट ऐड किया देखो. If we have 640 लीटर्स ऑफ 8% सॉल्यूशन, हमारे पास जो सॉल्यूशन था 8% वाला वो कितना था? 640 लीटर. एंड उसके अंदर जो ऐड कर रहे हैं 2% वाला वो कितना है वो नहीं पता है, दैट इज नॉट गिवन. सो इफ वी हैव 640 लीटर ऑफ 8% सॉल्यूशन, then how many liters of 2% solution will have to be added? 2% of boric acid we are adding into our 8% of boric acid, and जो मिक्सर बनेगा उसका जो बोलते हैं ना मिक्सर, उसका परसेंटेज कितना होना चाहिए? इट विल बी it must be between 4% and 6%. So question is how many liters of 2% solution will have to added. तो 2% solution हम ऐड कर रहे हैं, उसका कंटेंट कितना होगा? तो मिक्सर करने के लिए हमें सपोज हमारे पास एक ऐसा एक बीकर है ना. सो फॉर एग्जांपल डायग्राम से ट्राई करते हैं. अगेन अ सॉल्यूशन ऑफ 8% बोरिक एसिड, इसके अंदर एक सॉल्यूशन है, दैट सॉल्यूशन इज 8% बोरिक एसिड. ये हमारे पास पहले से ही है. इसका कंटेंट कितना है? 640 लीटर ना. 640 लीटर ऑफ 8% बोरिक एसिड इज देयर. इसके अंदर हम ऐड कर रहे हैं, क्या ऐड कर रहे हैं? 2% ऑफ बोरिक एसिड. बोरिक एसिड ये इसके अंदर ऐड कर रहे हैं, और कितना ऐड कर रहे हैं वो आपको फाइंड करना है ना. क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ 2% सॉल्यूशन विल हैव टू बी एडेड. तो ये कितना ऐड कर रहे हैं, तो वो तो हमें फाइंड करना है. तो हम क्या कर रहे हैं इन आवर वर्ड प्रॉब्लम, what we have to find, that we have to assume. So here you have to find the content of this 2% boric acid. So let this 2% boric acid is x liter. So 640 liter of 8% boric acid is there, and we are adding x liter of 2% boric acid ना. ये जो था डाइल्यूटेड एसिड और डाइल्यूटेड सॉल्यूशन वो 8% का था, उसके अंदर हमने 2% वाला ऐड कर दिया, तो इसका जो डाइल्यूशन रेशियो है वो चेंज होगा. उसकी रेंज कितनी है? इट मस्ट बी लाइज बिटवीन 4% to 6%, है ना. 4% से कम नहीं होना चाहिए और 6% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. इसका जो परसेंटेज है वो 4% और 6% के बीच में होना चाहिए. डन. 6% of what? Total solution. 6% of what? Total solution. This is 8% of 640 liter and this one is 2% of our x liter. Done. तो इसके अंदर बीकर के अंदर जो सॉल्यूशन होगा अभी वो कितना होगा? 640 प्लस x लीटर होगा. अभी इसका जो डाइल्यूशन रेशियो है ना मिक्सचर का, वो कितना होना चाहिए? इट मस्ट बी बिटवीन 4% to 6%. So now we can say our total solution, total content of solution is 640 liter plus x liter. So it's a 640 plus x, 640 plus x liter. Done. So
what is the content of boric acid? It's a 8% of 640 and x percentage of 2. तो कितना होगा दोनों का एडिशन? We can say 8% of 640 plus 2% of x liter. Now remove this percentage sign. It's a 8 upon 100. 8 upon 100 into 640 plus 2 upon 100 into x. Done. So this is the total content of our solution in our beaker. What is the range? This range, the range of this solution must be lies between 4% to 6%. Done. So can we write now inequality? It must be 4% of total. So total is 640 plus x. So now 4% of total content 640 plus x, 640 plus x less than total कितना है? This one 8 into 640 by 100 plus 2x upon 100. तो ये होगा 8 into 640 upon 100 plus upon 100 plus 2x upon 100 less than, है ना, 4% ज्यादा और कम कितना कितना मैक्सिमम हो सकता है? 6%. 6% ऑफ टोटल, टोटल कितना है कंटेंट सॉल्यूशन का? 640 प्लस x लीटर. क्लियर स्टूडेंट्स? इसमें किसी को समझ में आया? किन किन लोगों को समझ में आया? क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है ना. 2-3 बार ट्राई करना आप देखने के लिए कि क्या कर रहा हूं मैं. दिस इज 4% ऑफ 640 प्लस x and this is total content. Now we have to solve this inequality. We will get the value of Ex. So for that, first remove this percentage sign. So it will be 4 upon 100. 4 upon 100 into 640 plus x less than 8 into 640 upon 100 plus 2x upon 100 less than, this one is 6 upon 100 into 640 plus x. Done. Multiplying this inequality with 100, so this 100 will be cancelled out. Now simplification. So here पहले मल्टीप्लाई कर दो, क्या होगा? मल्टीप्लीकेशन 4 4 जा 16, 4 6 जा 24 प्लस 1 24 plus 1 25, 2560 plus 4x less than this one 32 51 0 प्लस 2x, है ना. 100 को कॉमन लेके कट कर दिया है तो ये मल्टीप्लीकेशन प्लस 2x. सो 5120 प्लस 2x लेस देन, ये 100 भी कट हो गया. यहाँ पर 6 4 जा 24, 36 प्लस 2 38, 38 0 प्लस 6x. Done. So this is one inequality, and to solve this inequality we will break this inequality, है ना. ये दोनों को पहले कंपेयर करवाएंगे, इसके बाद, है ना, ये दोनों को, उसके बाद ये दोनों को कंपेयर करवाएंगे. So we will get the solution of this inequality. Done. So first we are writing 2560 plus 4x less than 5120 plus 2x. इसका सॉल्यूशन करें, this one. So now 2560 plus 4x less than 5120 plus 2x. ये 2x को इस साइड ले लो, ये 2560 को सामने भेजो, तो दिस विल बी 2x लेस देन 5120 माइनस 2560, 5120 माइनस 2560. कौन करेगा ये? टू फाइव सिक्स जीरो ये हाँ 2560. सो x लेस देन, इसको 2 से डिवाइड करो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16 0. सो x मस्ट बी लेस देन
1280 है ना, ये अपर लिमिट मिली हमें कि जो एक्स एक्स क्या है हमारा, जो हम 2% बोरिक एसिड ऐड कर रहे हैं ना, वो दैट मस्ट बी लेस देन 1280 लीटर, है ना, लेस देन, कम से कम कितना होना चाहिए, तो उसके लिए हमें ये पार्ट से मिलेगा. सो सेकंड पार्ट ऑफ दिस इनइक्वालिटी, second part. So for second part, we will compare this one. 5120 plus 2x less than 3840 plus 6x. Done? So 5120 plus 2x less than 3840 plus 6x. इसको सामने ले जाओ, इसको लेफ्ट साइड पर लाओ. So this one is 5120 minus 3840 लेस देन 6x माइनस 2x 4x. इसका सब्ट्रैक्शन करके दो मुझे, क्या होगा? 1280 लेस देन 4x, 4 से डिवाइड करो, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 0 लेस देन x, है ना. वो जो कंटेंट हम ऐड कर रहे हैं वो 320 से ज़्यादा होना चाहिए, 320 से ज़्यादा और 1280 से कम. सो हमारा आंसर 2% बोरिक एसिड मस्ट बी मोर देन कितना, 320 लीटर, इससे ज़्यादा, और लेस देन, और नहीं, एंड लेस देन कितना होना चाहिए, 1280 लीटर. इतना हमें ऐड करना है हमारे सॉल्यूशन में. तो जो बोरिक एसिड है ना, जो मिक्सचर रेडी होगा, वो कितना परसेंटेज बोरिक एसिड वाला होगा, वो डाइल्यूटेड होगा. एंड दैट रेंज बिटवीन, है ना, मिक्सचर की रेंज है वो 4% to 6% बोरिक एसिड वाली होगी. डन. ओरिजिनली हमारा 8% बोरिक एसिड वाला सॉल्यूशन था, अभी उसमें हम डाइल्यूटेड सॉल्यूशन ऐड करेंगे तो वो 4% to 6% के बीच में वेरी होगा. क्लियर? सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 12. आया कुछ समझ में? थोड़ा थोड़ा, है ना. थोड़ी ट्राई करना आप अपनी तरीके से अंडरस्टूड होने के लिए, अदरवाइज कुछ नहीं है इसमें. 13, ये भी सेम है ना, डाइल्यूटेड एसिड सॉल्यूशन 45%, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर. चलो 13 ट्राई करते हैं. Question number 13. How many liters of water will have to be added to the 1125 liters of the 45% of acid? है ना, देखो, how many liters of water will have to be added into the 1125 liters of 45% of solution? तो ये बीकर हमारा एक, इसके अंदर एक सॉल्यूशन है, तो कितना है, 1125 लीटर, 1125 लीटर ऑफ सॉल्यूशन है. उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर विल हैव टू बी एडेड, वाटर ऐड कर रहे हैं. सो लेट्स से x लीटर ऑफ वाटर is added into this 1125 liter of solution. So added to 1125 liters of solution of 45%, ना, 45% of acid. तो इसके अंदर एसिडिक कितना है, 45% एसिडिक है. How many liters of water will have to be added to 1125 liters of the 45% solution of acid? So this is solution of acid with 45% of acid. Done. In this acid we are adding water of amount x liter हम amount add कर रहे हैं. So that resulting mixture will be contained, इसके अंदर वाटर ऐड करेंगे तो ये जो एसिडिक परसेंटेज है वो डिक्रीज होगा. तो कैसे डिक्रीज होना चाहिए, देखो, हाउ मेनी अमाउंट ऑफ वाटर शुड बी एडेड इनटू दिस सॉल्यूशन सो दैट रिजल्टिंग मिक्सचर विल कंटेन मोर देन 25%. देखो ये 45% एसिडिक है, अभी इसके अंदर हम वाटर ऐड करेंगे तो ये जो एसिडिक उसकी जो कंटेंट है वो एसिडिटी कम होगी. वो कम कितनी होनी चाहिए, 25 तक. सो रिजल्टिंग मिक्सचर विल कंटेन मोर देन 25 एंड लेस देन 30. मिनिमम आपको 25% तक उसको आप रिड्यूस कर सकते हो, है ना. और कितना पानी ऐड करना है, ये 45 से लेके 30% तक डिक्रीज ना हो ना तब तक. ये जो 45% एसिडिक है उसको आपको पानी मिला के डाइल्यूट करना है ना. जैसे आप पानी मिलाएंगे, जैसे हमारे सैनिटाइजर में 99% अल्कोहलिक हो जाए, उसमें जितना पानी ऐड करेंगे तो 70% 50% डाइल्यूटेड होगा. तो हमारे यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पानी मिक्स कर रहे हैं. तो ये जो 45 एसिडिक है उसको पानी मिला के आपको इसको जो
एसिडिटी है उसको आपको डिक्रीज करना है। कहाँ तक डिक्रीज करना है? मिनिमम 25 तक और मैक्सिमम 30 तक, ये हमारी रेंज आ गई। डन। सो 25% ऑफ टोटल टोटल मिक्सचर, तो टोटल मिक्सचर कितना होगा? 1125 लीटर प्लस एक्स होगा, और ये भी 35% ऑफ टोटल मिक्सचर होगा, कितना? 1125 प्लस एक्स। सो टोटल, हियर वी कैन राइट टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर, टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर है ना, 1125 लीटर था, उसमें हम पानी ऐड कर रहे हो, कितना पानी ऐड कर रहे हो हमें फाइंड करना है। वो हमने एज्यूम कर लिया कि लेट x लीटर ऑफ वाटर टू बी एडेड इनटू द acid solution. So total quantity of mixture will be 1125 plus x liter. Done? यहाँ से अच्छी तरह से लिखे चलो। First we are writing our assumption. What we are doing? We are adding water. So let x liter of water, x liter of water to be added, x liter of water to be added to this one 1125 liter of 1125 liter of 45% of acid solution, 45% of acid solution. Done. So x liter of water is added into the 1125 liter of 45% of acid solution. So here total quantity, or we can say total quantity of solution is 1125 plus x liter. Done. So the percentage of acid solution must be remain 25 to 30. That is our range. Now, अभी इसके अंदर देखो, इसके अंदर 45% एसिड सॉल्यूशन है, इसके अंदर हम पानी मिला रहे हैं, तो इसका जो परसेंटेज वो कितना होगा? तो वो होगा 45% ऑफ दिस 1125 प्लस पानी मिला रहे, पानी के अंदर कुछ एसिड होगा? वो तो कुछ नहीं होगा, वो तो 0% ऑफ एसिड होगा, है ना। तो अभी हम हमारी हम इनइक्वालिटी लिख रहे हैं, वो इनइक्वालिटी कैसे होगी? देखो 25% ऑफ टोटल क्वांटिटी, सो 25% ऑफ टोटल क्वांटिटी इज, ऐसे होगा 25% ऑफ टोटल क्वांटिटी, दिस वन 1125 प्लस एक्स लेस देन, ये कौन सा है? 45% ऑफ दिस 1125 लीटर ऑफ सॉल्यूशन प्लस पानी के अंदर कुछ ऐसे नहीं होगा, तो 0% ऑफ एक्स, इसको हम ऐसे लिख पाएंगे 45% ऑफ 1125 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, और इसके अंदर उन्होंने पानी भी ऐड किया ना, वो पानी के अंदर एसिड तो कुछ नहीं होगा, वो होगा 0% ऑफ एक्स लीटर, इतना होगा एसिड। पानी के अंदर एसिड नहीं होगा, हम पानी मिक्स कर रहे हैं, ठीक है, वो सॉल्यूशन हम ऐड नहीं कर रहे, तो 0% ऑफ एक्स लीटर, वो लेस देन कितना होना चाहिए? 30% ऑफ टोटल क्वांटिटी। सो 30% ऑफ टोटल क्वांटिटी इज 1125 प्लस एक्स लीटर, ये हमारी हो गई इनइक्वालिटी। क्लियर स्टूडेंट्स? 20% भी समझ में आ रहा है आप लोगों को, कि इससे ज्यादा समझ में आ रहा है, या फिर सब कुछ समझ में आ रहा है? कि एक बार और रिपीट करूं? कोई आंसर नहीं? वेरी गुड। फर्स्ट विल रिमूव दिस परसेंटेज साइन 25। हाँ बोलो। 1 नहीं लिखा है, ये मैंने लीटर लिखा है, लीटर कहीं पर भी नहीं लिखा, यहाँ पर लिख दिया, तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, है ना, लीटर। डन। मेरी राइटिंग इतनी अच्छी है ना कि मेरे मार्क्स ही कट हो जाते थे। सो 25% अपॉन, सो 25 अपॉन 100 इंटू 1125 प्लस एक्स लेस देन, ये क्या होगा? 45%। सो 45%, सो इट्स 45 अपॉन 100 ऑफ 1125। डन। प्लस 0% ऑफ एक्स लीटर, 0। डन। गायब, वो टर्म गायब हो गई। क्लियर? लेस देन 30% ऑफ 30 अपॉन 100 ऑफ टोटल क्वांटिटी 1125 प्लस एक्स, ये क्लियर हुआ सबको?
अभी तीनों को यहाँ से 0 और 100 को मैं मल्टीप्लाई करके 100 रिमूव कर दूंगा। डन। अभी ये देखो यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन, ये कौन आवाज आ रही है? तो यहाँ पर क्या होगा, 251125 प्लस एक्स लेस देन 451125 लेस देन 301125 प्लस एक्स। ये हमारी इनइक्वालिटी आ गई। अभी ये इनइक्वालिटी को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, दिस वन एंड दिस वन, और दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे। डन। सो फर्स्ट आई एम राइटिंग दिस वन, ये 25 इंटू 1125 एक्स लेस देन 45 1125, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दे, है ना। ये मल्टीप्लाई कैसे करता हूँ देखो, ये पहले लिखता हूँ, चलो। नाउ 251125 प्लस एक्स लेस देन 45 इंटू 1125। अभी इसको मैं 25 इंटू 1125 लिख सकता हूँ ऐसे। 25 मल्टीप्लीकेशन नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ ऐसे एक्सपांशन कर रहा हूँ। 25 इंटू प्लस 25x लेस देन 45 इंटू 1125। आया समझ में, है ना। इसको एक्सपांड किया अपन, एक्सपांशन के साथ मैंने मल्टीप्लीकेशन नहीं किया। देखो 25 इंटू 1125 प्लस 25x लेस देन 441125। तो ये 441125 है, उसमें से मैं 251125 सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। तो क्या होगा, 25x लेस देन 451125 माइनस 251125, तो 45 माइनस 25, सो 201125 होगा, है ना। मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, ऐसे डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन कर रहा हूँ। 25 डिनोमिनेटर में जाएगा, तो क्या होगा, x लेस देन 20/1125 डिवाइड बाय 25। अभी इसका कटिंग करो दो। हे भगवान, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, ये ऊपर कटिंग होगा। 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, तो 225 इंटू 4, अरे वाह, क्या फिगर आएगा बोलो। x लेस देन 900, x लेस देन 900। डन। ये फर्स्ट सॉल्यूशन हुआ। अभी ये पार्ट को ले ले, ये पार्ट को। हाँ, देखो ये पार्ट कैसे होगा, सेम मेथड से, है ना। ये रहा, ये दूसरा पार्ट, ये पूरी इनइक्वालिटी फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया, अभी दूसरा पार्ट ये वाला। So it's a 45 1125 less than 30 into 1125 प्लस एक्स। अभी यहाँ पर भी मैं एक्सपांशन करूंगा, लेकिन मल्टीप्लाई नहीं करूंगा। तो ये क्या होगा, 45, है ना, 45 लेस देन 30 प्लस 30x। डन। अभी ये 30 को यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो 45 माइनस 30 तो क्या होगा, 15 लेस देन 30x। 30 को डिवीजन में ला लो, तो ये होगा 15 डिवाइड बाई 30 लेस देन x। ये कटिंग हो सकता है, 3 से होगा, 3 10 जा 3 5 जा 5 2 जा, और ये 1125 डिवाइड बाई 2 करो, क्या होगा, 2 5 जा 10, 1 2 6 जा 12, 2 4 2 2 जा 4, 2 5 जा, सो 562.5 लेस देन x। ये हमारी सेकंड रेंज आ गई। तो x क्या है, जो पानी ऐड कर रहे हैं ना, वो कितना होना चाहिए, 562.5 लीटर से ज्यादा और 900 लीटर से कम। डन। और वाटर कंटेंट must be greater than 562.5 liter and less than 900 liter। क्लियर स्टूडेंट्स, आई थिंक 100% समझ में आना चाहिए। यस और नो, कैलकुलेशन में समझ में, कैलकुलेशन में समझ में आ गया, है ना। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, जो हमने पहले ऐसे कभी नहीं किया था वो हमने किया, तो आपको इसकी एक दो बार प्रैक्टिस कर देनी है, ठीक है, अदरवाइज कुछ नहीं है। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर 14।
So here in 14 question, IQ, intelligence quotient. IQ of the person is given by the formula. देखो IQ फाइंड करना है किसी पर्सन का, वो भी एक फॉर्मूला से फाइंड कर सकते हो. So IQ level of person is equal to MA upon QA मल्टीप्लाई बाय 100. किसी भी पर्सन का आपको IQ लेवल टेस्ट करना है तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, MA अपॉन CA, सॉरी MA अपॉन सॉरी CA है, MA अपॉन CA इंटू 100. डन. ये MA क्या हुआ? MA इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ मेंटल एज, है ना. बच्चे बड़े तो हो जाते हैं लेकिन उसकी मेंटल एज है ना छोटे बच्चे जैसी होती है. सो मेंटल एज. एंड CA इज क्रोनोलॉजिकल एज. So here condition is if 80 less than or equal to IQ less than or equal to 140. अगर ये जो फॉर्मूला का यूज करके हमने IQ फाइंड किया और अगर वो IQ की रेंज कितनी है 80 लेस देन और इक्वल टू IQ लेस देन और इक्वल टू 140 फॉर अ ग्रुप ऑफ 10 year old children. डन. फॉर द ग्रुप ऑफ 10 year old children द IQ लेवल जो 10 साल के बच्चे होते हैं ना, सॉरी 12 साल के, उनका जो IQ लेवल होता है वो इतना होता है 80 लेस देन और इक्वल टू IQ लेस देन इक्वल टू 140. दैट मीन्स IQ लेवल उनका 80 और 140 के बीच में रहता है. सो फाइंड द रेंज ऑफ देयर मेंटल एज. तो बच्चे तो 12 साल के हैं और उनका IQ लेवल 80 टू 140 के बीच में है. डन. तो उनकी मेंटल एज कितनी होगी, 12 साल के बच्चे की मेंटल एज कितनी होगी वो हमें फाइंड करनी है. डन. सो हियर inequality is already given. Formula to find the IQ level is also given. So here we'll put the values and chronological age, जो इसकी जो actual age है ना वो भी दी है. वो कितनी दी है 12 years, है ना. The group of 12 year students. So chronological age of students given 12 year. So you have to put C equal to 12. बच्चे ओरिजिनली तो 12 साल के हैं लेकिन उनका IQ लेवल 80 और 140 के बीच में है. तो उनकी मेंटल एज कितनी होगी वो आपको देखना है कि बच्चे वाकई में बड़े हो गए हैं कि सिर्फ फिजिकली बड़े हुए हैं. आया समझ में? ये इसका मतलब क्या हुआ, है ना. कोई पर्सन 25 ईयर का हो जाता है लेकिन उसका जो दिमाग होता है ना वो बच्चे जैसा होता है. तो उसकी क्रोनोलॉजिकल एज 25 साल की होती है लेकिन उसकी जो मेंटल एज होती है वो 10 साल की होती है ना. तो उसका IQ लेवल कम होगा, ऐसा हम बोल सकते हैं. तो ऐसा कोई फॉर्मूला है. तो हियर ग्रुप ऑफ children having chronological age 12 years is given. So we have to find the mental age of that group. So this is inequality. So put IQ equal to 80 less than or equal to MA upon CA less than or equal to 140. Age of group 12 is there. So it's 80 less than or equal to MA upon 12 less than or equal to 140. Here we have to multiply inequality by 12. So it's a 12 8 96 less than or equal to mental age less than or equal to 140 into 12. 1680. डन. मेंटल एज ये परसेंटेज 100 में था ना, 100 था, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा. सो इट्स 9.6 लेस देन इक्वल टू मेंटल एज लेस देन इक्वल टू 16.8. So minimum age of this group of child is 9.6 and maximum age 16.8 years, है ना. तो मेंटल एज ग्रुप में बच्चों की अगर किसी बच्चे का IQ लेवल सबसे ज्यादा है 140 तक जा रहा है तो उसकी क्रोनिकल एज 12 है ना. तो वो क्रोनिकल एज 12 हो गई लेकिन उसका IQ लेवल सबसे ज्यादा हो रहा है तो उसकी मेंटल एज कितनी होगी 16.8 ईयर की. वो हालांकि 12 साल का है लेकिन उसका दिमाग कैसे चल रहा है 16.8 ईयर वाला कोई व्यक्ति है ना ऐसा चल रहा है. अगर किसी बच्चे का IQ लेवल कम है 80 है. डन. तो उसका मतलब क्या हुआ, अगर बच्चे का IQ लेवल सबसे मिनिमम है 80 है, अगर उसकी क्रोनिकल एज 12 ईयर है तो हालांकि वो बच्चा 12 साल का तो हो गया लेकिन उसका दिमाग कैसा चल रहा है 9.6 ईयर वाला कोई बच्चा है ना ऐसा चल रहा है ना, 3 साल पीछे चल रहा है.
IQ लेवल सबसे हाईएस्ट है, तो वो 12 साल का है, लेकिन उसका दिमाग किसी 16.8 ईयर व्यक्ति है, वो इतना तेज चल रहा है. क्लियर? So this is the meaning of this question. Done? So this is